Good morning, student. Myself Manjeet Kaur, working as a HOD in CSE department at Chandigarh Polytechnic College. Today we will discuss about swapping. Swapping means interchange. How to change a value without using third variable and using third variable. I am going to share my screen. Start with header file hash include studio.h hash include conio.h void main. Here is our main function. Next is curly bracket, enter, and enter two variables like x comma y, and we need third variable to interchange the values. So temp is our third variable. Enter, assign value to x equals to 20 and y equals to 30. Here the 20 stored in x and 30 stored in y, and the next step is to interchange values. Temp equals to x. Here we interchange the value. x की वैल्यू जो है वो टेम्प में स्टोर हो रही है बिकॉज सी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा राइट टू लेफ्ट जाती हैं. तो फर्स्ट वी इंटरचेंज द वैल्यू x टू टेम्प. तो यहाँ पे x जो है वो हमारा फ्री हो चुका है एंड टेम्प में जो x की वैल्यू 20 थी वो स्टोर हो गई है. द नेक्स्ट x इक्वल्स टू y. नाउ y की वैल्यू जो है अब वो x में स्टोर हो गई है. नेक्स्ट y equals to temp. And print f after swapping values are, यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज हमारी जो हैं वो क्या हैं, परसेंटेज एक्स कोमा वाई. तो get ch and close. First we want to save our program with the file name save swap.c and click OK, right? And first compile your program with the help of Alt F9. No warnings and no errors. Press any key, enter, and Control F9 to run your program. Here the after swapping values are 30 and 20. So आफ्टर स्वैपिंग जो वैल्यूज़ हैं वो 20 जो हमारी x की वैल्यू थी वो x में आ गई है और y की वैल्यू जो है वो x में चली गई है. तो ये जो प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है, वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर रहा है विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल. आर सेकंड प्रोग्राम फॉर हाउ टू स्वैप वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल. इस प्रोग्राम में क्या किया हमने, दो वेरिएबल्स लिए एंड थर्ड वेरिएबल
लिया स्वैप करने के लिए वैल्यूज़ को। तो फर्स्ट वी इनिशियलाइज 3 वेरिएबल्स x, y एंड टेम्प। x को वैल्यू स्टोर होगी एंड y की वैल्यू स्टोर होगी। टेम्प जो हमारा एम्प्टी था उसमें हमने पहले x की वैल्यू डाली, देन x वेरिएबल जो था वो फ्री हो गया। उसके बाद x में हमने y की वैल्यू डाली, तो वैल्यूज़ जो हैं वो इंटरचेंज हुई। देन टेम्प की जो वैल्यू पड़ी थी, x की वैल्यू जो टेम्प में स्टोर की थी, तो नेक्स्ट हमने क्या करता उसको y में जाके स्टोर कर दिया। देन प्रिंट किया हमने x एंड y को। तो हेयर वी व्हेन वी इनिशियलाइज द वेरिएबल्स देन असाइन अ वैल्यू, तो x को हमने की थी 20 एंड y को की थी 30। बट आफ्टर कंपाइलेशन जो हमारे पास रिजल्ट आया तो उसमें क्या है, x की वैल्यू 30 एंड y की वैल्यू 20। सो तो ये हमारा स्वैप हुआ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर स्वैप टू वैल्यूज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। Let's start. Write down header files, include u.h hash, include conio.h, and void main, the main function, start curly bracket. First initialize two variables int x comma y. Only initialize two variables and assign values x equals to 20 and y equals to 30. Here we assign values to x and y. So without using third variable we want to change values। ठीक है, जब हमने आउटपुट में वैल्यूज को चेंज करवाना है बट थर्ड वेरिएबल जो है वो उसकी हेल्प नहीं लेनी, देन फर्स्ट ऐड x और y, दोनों वैल्यूज को हमने ऐड करना है, x प्लस y। एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स किस में सबमिट हुआ जाके, x में। नेक्स्ट y इक्वल्स टू x माइनस y, एंटर। x इक्वल्स टू x माइनस y, right? Then print f after swap, after swapping क्या हुआ, वैल्यूज को प्रिंट करवाना हमने सेम वे जैसे विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल किया था। d here d is the format of int x comma y get ch and close. Save your program with the help of file menu. Click on save and write down the name without swap.c. Click on OK. Yes. First compile your program. No error. Press enter. Compile your program. Here after swapping 30 and 20, let's write down clear screen. To clear the console screen, we already discussed about clear in last lecture. The Conio header file includes two functions. First is clear screen and second getch. So CLR SCR used to clear the console screen. When you compile your program, then output is
30 and 20, तो थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं। ठीक है, 30 and 20। तो जब हमने एंटर किया था उसको x की वैल्यू 20 थी एंड y की वैल्यू जो थी वो 30 थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने विदाउट एनी थर्ड वेरिएबल स्वैप किया। तो फर्स्ट डिस्कस करें कि कैसे हुआ। फर्स्ट हमने इनिशियलाइज की वैल्यूज़ x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 30। सो दोनों की वैल्यूज़ हमने स्टैटिक वैल्यूज़ दी हैं, दोनों को कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होएंगी। तो फर्स्ट x इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हमने क्या किया 20 द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई 30। तो दोनों की वैल्यू का जो एडिशन है वो हमने x में स्टोर किया। इट मीन्स कि जब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट राइट डाउन की तो 20 प्लस 30 50 जो है उसकी 50 जो है वो स्टोर हुआ जाके x में। तो हेयर द x क्या स्टोर कर रहा है 50। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इंडिकेट क्या कर रहा है कि x माइनस वाई, तो x की जो वैल्यू वो है नाउ 50 माइनस y की वैल्यू क्या है 30। तो हमने क्या किया 50 माइनस 30, तो y में क्या स्टोर हो गया जाके 20, राइट। नेक्स्ट x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, तो y की वैल्यू क्या है 20 और x की वैल्यू क्या है 50। जब 50 में से 20 को लेस करोगे तो आउटपुट आंसर क्या आएगा 30। देन यहाँ पे हमारा x क्या स्टोर कर रहा है 30। सो द वैल्यूज इंटरचेंज विद द हेल्प ऑफ these three statements: x equals to x plus y, y equals to x minus y and x equals to x minus y। एंड लास्ट में हमने क्या करवाया इनको प्रिंट। तो वैल्यूज जो हैं विदाउट थर्ड वेरिएबल हमारी इंटरचेंज हुई। तो अब अगर आपने इसको राइट डाउन करना है, जैसे फर्स्ट वे हमने क्या राइट डाउन किया x एंड y को एक में ही प्रिंट करवा दिया, तो इसकी जो आउटपुट है वो थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, दोनों 30 एंड 20 आ रही है। जस्ट इसको न्यू लाइन में करने के लिए जस्ट आप क्या राइट डाउन करोगे, फर्स्ट कमेंट योर स्टेटमेंट, राइट डाउन द न्यू स्टेटमेंट printf after swapping the value of x, ठीक है, x is equal to फॉर्मेट ऑफ इंट परसेंटेज डी डबल कोट्स कॉमा एंड एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया एक सिंगल लाइन को प्रिंट करवा दिया है ताकि जो यूज़र है जो थर्ड पर्सन को आउटपुट शो होएगी वो क्लियर हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट डाउन printf सेम वे नेक्स्ट जो वैल्यू है y की वो भी हमने प्रिंट करवानी है। आफ्टर swapping the value of y is right। First compile your program and run your program. Then the answer is after swapping the value x is equals to 30 and after swapping the value of y is 20, right? The interchange both values and if you want to show कि आपका जो आउटपुट है वो शो हो नेक्स्ट लाइन में, then use /n after %d \n,
here the backslash n इसका काम क्या है, इट्स एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या करते हैं कि उनकी अपनी एक डेफिनेशन है, उनका एक अपना काम है, तो उन्होंने क्या करना है, \n ने न्यू लाइन मीन्स के हमने क्या स्टेटमेंट दी कि आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ x प्रिंट होने के बाद ये न्यू लाइन में आ जाए, मीन्स के इसके लिए वो वहाँ से ब्रेक करेगा लाइन को, तो वो न्यू लाइन में आ जाएगा। लेट्स सी, राइट, after swapping the value of x is 30 and after swapping the value of y is 20। तो दोनों वैल्यूज आपको इजीली पता चल रही हैं आफ्टर स्वैपिंग, right? So this is our program without using third variable and with using third variable. Here we write \printf after, ये हमने किया है, इसको बैकस्लैश है, ये है हमारा कमेंट। तो यहाँ पे कि मैंने डिलीट नहीं किया इस प्रोग्राम की लाइन को, फॉर व्हेन वी यूज टू के कंपाइलर जो है आपका लाइन को स्किप करे, देन आप क्या राइट डाउन करते हो, कमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंगल लाइन को कमेंट लगा दिया। ये ऑलरेडी प्रोग्राम में एग्जिस्ट है बट कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, राइट। तो सिंगल लाइन कमेंट लगा के मैंने नीचे उसको प्रिंट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ \n। \n इज अ एस्केप सीक्वेंस, ये एस्केप सीक्वेंस है, इसने क्या किया, उसको लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो वो न्यू लाइन में आ गया। थैंक्स।